When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Hello everyone. We welcome to another episode of Cord Live. We are going to talk about today on myths and facts on pregnancy. To speak on the topic, we have Dr. Asha Sethia, a very well-known personality in Indore. She is the director of Aditya Hospital, and she has 25 years of experience in the field. She specializes in obs and gynae and infertility. So we welcome you, ma'am, on the platform. It's so nice to have you. Over to you, ma'am. Hello. Very good morning to all of you. As already mentioned by the Dr. Mandakini, Adit Hospital in association with the Cord Life has organized a webinar for pregnant ladies. Today we are going to discuss about the myths and facts among the family members of the pregnant mothers during the antenatal period. All people have different opinion in same subject regarding the outcome of the baby and in pregnancy, which usually end up of confusing the pregnant mom about what do and what not. So today we are here to give you the best solution and authenticity for all your queries, which are you put in the chat box. Thank you. Over to you, Dr. Mandakini. Welcome to the platform and come to show us live. Thank you so much, ma'am. I hope my slides are visible. Okay, yes, it is visible. Okay, so today I'm going to talk about myths and facts in pregnancy. To give a brief about myself, I am a physiotherapist by profession and I am internationally certified pregnancy fitness educator. और मैं पिलाटेस भी कराती हूँ. सो मैट पिलाटेस इज नथिंग बट हाउ टू स्ट्रेंथन आपकी जो पेट की और जो की पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं उनको आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. सो ये उसके आसपास रिवॉल्व करती है, जो कि मैं पोस्ट प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी दोनों में ही कराती हूँ. देन दिस इज आई एम ऑल्सो अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, जिनको ब्रेस्ट फीडिंग के इश्यूज होते हैं, कैसे आप ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, क्या तरीके हैं, क्या माँ का दूध पूरा है कि नहीं है. सो ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस आई आंसर. सो that's about myself, and I am being into the profession from past 13 years. So without wasting much time, I'll just start up my slides. Okay, so सबसे पहला जो myth आता है प्रेगनेंसी की लेडीज को, okay, which is stress during pregnancy is bad for fetus. तो आप परेशान मत होइए और स्ट्रेस मत लीजिए. इस तरह के काफी सारी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं. देखिए, स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं. एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस और एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस. नेगेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, किसी भी चीज को इमोशनल क्वेश्चन पे आप इतना सोच रही हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर या आपका थायराइड या आपके अदर हार्मोन्स वो चेंज हो रहे हैं. वो गलत होता है, बिकॉज वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन द कमिंग पीरियड. बट अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस लेती हैं, जैसे यू वांट टू फुलफिल सम गोल्स, आप कुछ काम करना चाहती हैं, आप कुछ अचीव करना चाहती हैं, या और बहुत तरीके का समथिंग जो कि आपको टारगेट ओरिएंटेड रखती है, वो स्ट्रेस लेना गलत नहीं होता. रैदर वो आपके बच्चे का नर्वस सिस्टम बढ़ाने में
मदद करता है। तो स्ट्रेस इज नॉट बैड एज फार एज वो एक कंस्ट्रक्टिव डोमेन है। अगर वो डिस्ट्रक्टिव में जा रहा है जिसमें आप अपना नुकसान कर रही हैं, तो सीधी सी बात है आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी नुकसान होता है। लेकिन आप अगर अच्छा सोचती हैं तो अच्छा फायदा होता है। क्रेविंग फॉर सॉल्टी फूड इज फॉर बॉय एंड फॉर स्वीट फूड इज फॉर गर्ल। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ मैंने देखा है कि अगर आपको कुछ खाने का, जैसे आपको खाने की क्रेविंग हो रही है, पेट का साइज के हिसाब से लोग बताते हैं कि ये लड़का है ये लड़की है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आप खाने का बात करें तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से कभी आपको सॉल्टी खाने का मन करता है, कभी आपको स्वीट खाने का मन करता है, बट इसका रिलेशन लड़के या लड़की से बिल्कुल नहीं होता। दूसरा मिथ होता है कि जो मैंने अक्सर, ये सारे मिथ्स मैं आपको जो डिस्कस करूंगी अक्सर मैंने अपने पेशेंट्स में देखे हैं जो अपनी मदर इन लॉ के साथ आते हैं या अपनी मॉम के साथ आते हैं, तो वो ये सब क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं। तो आई थॉट कि हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें से ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत सारे जो ओल्ड स्कूल या पुराने जमाने की जो लेडीज हैं उनको ये लगता है कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, वो नुकसान कर सकता है बच्चे को। तो देखिए एक्सरसाइज होता क्या है, एक्सरसाइज इज नथिंग बट आपकी जो मसल्स हैं, आपका जो हार्ट है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, उनको स्टिमुलेट करने के लिए और उनको सही चलाने के लिए हम एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं। आप सॉरी टू इंटरप्ट मंदाकिनी, जस्ट एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बता रही हूँ मैं। हेलो, यस यस प्लीज, मैं थोड़ा आपको, हाँ, एक्सरसाइज जो होता है ना, ये एक्सरसाइज से एक तो मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड गुड फॉर बेबी फर्स्ट। सेकेंड, इट इज ऑल्सो हेल्प टू डिलीवर द नॉर्मल डिलीवरी, जो कि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा कीन होते हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी कराना है। तो एक्सरसाइज शुड बी कंटिन्यू इन ऑल 9 months ऑफ द टेंटिकल पीरियड्स। ये आपको डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ओवर टू यू मंदाकिनी। Thank you so much, ma'am. I was coming to those points. Thanks for covering them. So, मैं आपसे ये कह रही थी कि एक्सरसाइज जो होता है बेसिकली क्या चीज है, एक्सरसाइज आपके सारे सिस्टम को फंक्शन करने में मदद करती है। अगर आप दिन में काम कर रहे हैं, आप कोई चीज उठा रहे हैं, इन सब के लिए आपको मसल्स की जरूरत है। अब अगर आपकी मसल्स अच्छे से काम नहीं करेंगी तब आपकी प्रॉब्लम्स आती है कि बैक पेन हो रहा है, नी पेन्स हो रहे हैं, गर्दन में दर्द हो रहा है, बाद में जब बच्चा उठाना है तो हाथों में दर्द हो रहा है। इन सब चीजों से बचने के लिए हम एक्सरसाइज बताते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ऑफ कोर्स वो आपको एक्टिव रखता है, आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ले जाता है, तो हम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी से ज्यादा के साथ साथ आपके बच्चे को भी एक्टिव और इंटेलिजेंट बनाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी कुछ होगा वो आपके बच्चे में जाएगा ही जाएगा। तो अगर आप खुद एक्टिव हैं, आपके हार्मोनल लेवल्स अच्छे हैं, आपके अंदर अच्छी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो सब बच्चे में जाती हैं। तो देखा जाता है थ्रू रिसर्चेस, जो माँ एक्सरसाइज करती हैं उनके बच्चे ज्यादा एक्टिव और इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। सो डेफिनेटली एक्सरसाइज हम ना केवल आपके लिए, आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी हम सजेस्ट करते हैं। सो इट्स वेरी मच यूजफुल। स्टे अवे फ्रॉम सी फूड इन प्रेगनेंसी। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्होंने ये सुना होगा कि फिश मत खाओ, प्रॉन मत खाओ, अच्छा नहीं होता है, नुकसान करता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सी फूड्स के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है और उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सी फूड्स का आप खा सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल दैट आप नहीं खा सकते। मैम, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन समथिंग ऑन दिस? हाँ, यस, आई एम एग्री विद यू। आप सी फूड बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि सी फूड से, जैसा कि मंदाकिनी ने बताया अभी, कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं सी फूड्स के थ्रू, तो वो बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोगों को सी फूड लेना है, इसको अवॉइड नहीं करना है। और एक ही चीज का और ध्यान है कि कोई भी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। जितना आप सफिशिएंट, जितना जरूरत है उतनी मात्रा में लेंगे तो हर चीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और हेल्दी रहेगा। इट्स ओके। थैंक यू मैम। ओके, अनदर थिंग जो पूछी जाती है कि हम कोई क्रीम लगा लें, कोका बटर अगर हम लगा लेते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स रुक जाते हैं। देखिए, मैं
यूजुअली बहुत प्ले सेफ करती हूँ, तो मैं कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज सजेस्ट नहीं करती जिसमें आर्टिफिशियल एरोमा हो। What I usually suggest is usually आपका जो कोकोनट ऑयल है, या best is coconut oil, या Vaseline also not, because it also has some things. So coconut oil is something which I suggest कि आप वो लगा सकती हैं in order to prevent, in order to make your skin feel healthy. Basically आपको stretch marks क्यों होते हैं, that needs to be understand, that वो आपको समझना चाहिए। Stretch marks usually जब आपकी skin बहुत dry होती है, basically skin खिंच रही है, क्योंकि आपका बच्चा अंदर बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और आपकी बॉडी खुल सकती है। तो उसकी वजह से जब कोई भी चीज हम खींचते हैं, अगर आप एक रबर बैंड को खींचेंगे तो आप देखिए उसके अंदर से छोटे छोटे आपको क्रीज नजर आएगी या फाइबर नजर आएगा। अब जब आप उसको किसी भी चीज को खींचते हैं, अगर वो टॉकिंग टू योर स्किन, अगर वो मॉइस्चराइज नहीं होती है, तब वो ज्यादा खिंच जाती है, कुछ फाइबर्स ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बताते हैं कि उसको मॉइस्चराइज रखा जाए। अब मॉइस्चराइज रखने के लिए कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें। सो कोकोआ बटर इज काइंड ऑफ अ केमिकल, तो हम उसमें यूजुअली मैं सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्शंस या सेंसिटिविटी कॉज करते हैं। सेफेस्ट इज कोकोनट ऑयल, जो आप लगा सकते हैं। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? कोको स्ट्रेच मार्क्स के साथ मंदाकिनी ने बताया कि ये स्किन की स्ट्रेचिंग से होती है, तो इसके लिए जरूरी हाइड्रेटेड रखें, मॉइस्चराइज रखें स्किन को। आजकल कोकोनट बटर तो है ही है, इसके लिए बहुत सारे एलोपैथिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, जिससे आपको एलर्जी नहीं है, एलर्जी रिएक्शन नहीं होती है, तो आप यूज कर सकते हैं उसको स्ट्रेच मार्क्स के लिए। इट इज ऑलरेडी प्रेस्क्राइब बाय मी। Great, ma'am. Salt will make you swell up, so nothing like this. So yes, salt की वजह से water retention होता है, they say it, लेकिन आपकी बॉडी में जो swelling आ रही है वो salt की वजह से नहीं आ रही है। Salt एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है रादर आपकी बॉडी के लिए, और आप उसको खाना जरूरी है, लेकिन हाँ लिमिटेड मात्रा में। बहुत ज्यादा पापड़, अचार, ये सब चीजें आप ना खाएं, लेकिन हाँ सॉल्ट का इनटेक जरूरी है। नॉर्मल जो खाने में पड़ता है उतना काफी होता है। स्वेलिंग जो आपकी बॉडी में आ रही है, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। अब इसमें भी जब मैंने आपसे बात की थी, एक्सरसाइज आपके सारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, तो एक्सरसाइज आपकी स्वेलिंग पे भी काम करता है। अगर स्वेलिंग क्यों हो रही है आपकी बॉडी में, क्योंकि एक चेन होती है, लिम्फेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसका काम होता है गंदे खून को ड्रेनेज में पहुंचाना। तो अगर आपके घर में मान लीजिए सीवर ब्लॉक हो जाता है, तो सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अगर आप उसको खोल देती हैं तो सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता है। इसी तरीके से आपको अपनी बॉडी में सारे चैनल्स को खोल के रखना होता है। जिस दिन आपके सारे चैनल्स, जहां से गंदा खून जाना चाहिए और साफ खून रहना चाहिए, तो जब वो प्यूरिफिकेशन बॉडी में होती रहती है, तो आपको कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता है, कोई एडिमा, कोई स्वेलिंग, कुछ नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पूरी प्रेगनेंसी में एक भी कंप्लेन नहीं आती है। और बहुत सारे लोग मुझसे इस चीजें पूछते भी हैं कि मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या ये नॉर्मल है? डेफिनेटली नॉर्मल है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान और अच्छी एक्सरसाइजेस करेंगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सॉल्ट खाऊंगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, तो मैं सॉल्ट नहीं खाती। सॉल्ट आपके और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज I will give some information about swelling. Swelling एक नॉर्मल swelling होती है, यदि एक्सेसिव swelling है तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि अपने एंटी डॉक्टर्स के पास जाए, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाए, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, ठीक है ना। कभी कभी स्वेलिंग के साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं PIH। प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्लड प्रेशर बढ़ने से बच्चे की ग्रोथ भी रुक सकती है, माँ को भी हार्म हो सकता है, तो उसको रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। यदि मिनिमम स्वेलिंग है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग है, तो ये नॉर्मल होती है। बट ज्यादा स्वेलिंग है तो ये आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और जैसा कि मंदाकिनी ने बताया हुआ है कि सॉल्टी फूड, नॉर्मल सॉल्ट जितना जरूरी है बॉडी के लिए,
पर डे उतना लेना चाहिए। और एक्सेसिव मात्रा में सॉल्ट के सलाद में अपन सॉल्ट डाल के ले रहे हैं, बहुत सॉल्टी फूड खा रहे हैं, पापड़ है, अचार है, मिक्सचर है, एज यूजुअल जैसे इंदौर में सब लोगों को ट्रेंड होता है कि खाने के साथ सेव खाना है, नमकीन सेव जरूर खाते हैं इंदौर में। तो ये सब चीजें एक्सेसिव सॉल्ट अलग से नहीं लेना है आपको। सेकंड है कि कभी कभी बहुत ज्यादा बॉडी वेट होता है, जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा होता है, इनका वीनस प्रेशर, पेट्स पे थ्रोम्बोसिस के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफ लेते हैं, तो उनको स्वेलिंग आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल सारा इस चीज का मैटर ये है कि एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें, ओवर वेट गेन नहीं करें, और हर चीज को लिमिट मात्रा में जितना जरूरी है उतना ही लें। Over to you. Great. Thank you, ma'am. That was really a nice piece of information. Next is, don't lift your body hand above your head. Umbilical cord will strangle the baby. So देखिए, हाथ ऊपर या नीचे करने से आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे में स्ट्रैंगल नहीं होती, लेकिन रादर जो ये मूवमेंट में आपको इसमें दिखाया है वो आपकी मांसपेशियों को खींचने में ज्यादा मदद करती है और वो आपको प्रिवेंट करती है टू हैव एनी काइंड ऑफ बैक पेन, जो एक्सरसाइज इसमें में दिखाई गई है। आपकी बॉडी के अंदर बच्चा जब स्ट्रैंगल हो रहा है, क्योंकि आपकी एक तार है, इमेजिन कीजिए एक तार है जो कि एक ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है जो कि घूम सकता है। आपके पेट में फ्लूइड है, आपके यूट्रस में फ्लूइड है, उसके अंदर बच्चा घूम रहा है जो कि तार से कनेक्टेड है, तो वो मूवमेंट के साथ साथ कई बारी अटक जाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है कि अम्बिलिकल कॉर्ड। लेकिन आपके हाथ या आपके पैर या आपकी बॉडी मूवमेंट से अंदर कुछ नहीं होता, बिकॉज वो इससे कनेक्टेड नहीं होता है। सो दैट इज हाउ इट इज। मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस? No, carry on. Okay, thank you. Okay, next is hanging pictures of beauty babies on wall is cute babies. So ये एक बहुत ही बड़ी myth देखी है मैंने अपने टाइम पे, आज से 10 साल पहले जब मैं माँ बन रही थी, तो मैंने भी मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरे कमरे में भी ये लगाए थे अच्छे पिक्चर्स, ताकि मैं ये देखूंगी तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा पैदा होगा। ऐसा नहीं होता, बिकॉज आपके बच्चे के जो फीचर्स आते हैं या जो कलर आता है, अगर आप इंग्लिश या हैप्पी बेबीज देखेंगे, उससे जरूरी नहीं कि आपका बच्चा वैसे ही पैदा होगा। आपका बच्चा हैप्पी पैदा होगा अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसा मैंने बोला, अगर आप जो स्ट्रेस, जो मेरी पहली स्लाइड थी, अगर आप नेगेटिव स्ट्रेस लेंगे तो ऑफ कोर्स बच्चे के अंदर वो चीजें रहेंगी, अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस लेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप थ्रू आउट एक्टिव है, एक्सरसाइजेस करें, तो आपका बच्चा हैप्पी होगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके जीन्स पे, आपके हस्बैंड, आपकी अपनी फैमिली और आपके हस्बैंड की फैमिली, जो भी वहां से जीन्स चलते चले आ रही हैं, उनके बेसिस पे आपके बच्चे का लुक, आपके बच्चे की सोशल थिंग, वो सब कुछ जो होता है बेसिक ट्रेट्स होते हैं जो जीन्स ही कैरी करते हैं। तो जो आप, जैसे आप हैं, उसी के आसपास जो आपका पुराना कलर आपकी फैमिली में चलता चला आ रहा है, तो वही बच्चा कैरी करेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप ब्रिटिश हैं, आपका बच्चा एकदम वाइट हो जाएगा। हो सकता है अगर आपकी फैमिली में कोई उस टाइप का एक जीन चल रहा होगा, तभी होगा। अच्छी पिक्चर्स लगाने से कुछ नहीं होता, इट्स अ कंप्लीट मिथ। एंड यस, इट विल डिपेंड अपॉन कि आप लोग कैसे दिखते हैं या आपकी फैमिली कैसे दिखती है। ओके, ये एक और बड़ा मिथ है, ये भी मैंने किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे खिलाया गया था, कहते हैं, और मुझे यही कहा जाता था कि सफेद बादाम खाओगे तो बच्चा सफेद पैदा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगेन, दो आपकी फैमिली, दो मैं लकी थी कि वो सफेद हो गया, बिकॉज मेरी फैमिली में सब दे आर लाइक दैट। सो Because we are also circular. my husband is much more. My husband is much more. So it is from their genetics. So both of us. That's why baby is born white color. तो आई वॉज सेम कि हाँ ठीक है, मैंने बादाम भी खाए थे इस वजह से। So just kidding. So it's basically again on your genetics. If your husband or you yourself और आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली में कोई इतना ज्यादा
सफेद रहा हो या ग्रीन आईज रहा हो, तो वो सारी, या कोई भी डिफरेंट कलर ऑफ आईज रहा हो, वो सब चीजें बच्चे में आती हैं। इट्स नॉट कि आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता, ये सब कुछ जीन्स है, ये सब चलता चला आता है इन योर डीएनए। नाउ नेक्स्ट थिंग, बादाम खाने का लेकिन फायदा भी है। बादाम अगर आप ये वाले खाती हैं बादाम, इट इज वेरी नेसेसरी। जैसे मैंने बोला सी फूड से ओमेगा 3 आता है, तो इसमें भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, सम लेवल ऑफ ओमेगा 3 इसमें भी होता है, अच्छा प्रोटीन भी होता है। तो अगर आप ये खाती हैं तो डेफिनेटली आपके और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। उसको उस तरीके से खाइए, ये सोच के मत खाइए कि मैंने बहुत सारा बादाम खाया था तो मेरा बच्चा सफेद पैदा होगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो इंडियन फैमिलीज में स्पेशली बहुत रन करता है। सो आई होप ये मैंने क्लियर किया थोड़ा सा कि ये खाने से कुछ नहीं होगा, बट हाँ आपको बहुत फायदा होगा और बच्चे को। एक और चीज है कि बादाम खाने से एक और रहता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से, जैसा कि पहले बताया, ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इसेंशियल है। तो बादाम डेफिनेटली खाना चाहिए, और वो भी एक लिमिट का। ऐसा नहीं है कि बादाम के लिए फिर आप एक 200 ग्राम बादाम खा रहे हैं, हर चीज का एक लिमिट होना चाहिए। दैट्स वाई, यस मैम, थैंक यू सो मच। तो एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। आप जो खाएं हर चीज लेवल में खाएं। अगर आप कार्ब्स खा रहे हैं तो वो लिमिटेड होना चाहिए, फैट्स खा रहे हैं तो वो लिमिटेड होना चाहिए, इस तरह के नट्स खा रहे हैं तो वो लिमिटेड होना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी में एक कैपेसिटी है किसी भी चीज को लेने की। ओवर जाता है तो बॉडी पे स्ट्रेस आता है। तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज सजेस्ट कि सब चीज सही मात्रा में खाइए, कम भी मत खाइए और ज्यादा भी मत खाइए। इसके बारे में मैंने पहले स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि जो शेप होती है उसके बेसिस पे लोगों को लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो लड़का या लड़की है। अगेन दिस इज नॉट द केस, क्योंकि जिस तरीके से बच्चा आपके वूम में लेटा है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी शेप बड़ी हुई है या पतली है। तो दैट इज नॉट इट इज। तो ऐसा नहीं होता कि आपका पेट बाहर है या कम है, या माँ का वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके कलर ठीक नहीं हो रहा है, ढल रही है। ये बहुत सारे एक तरीके के मिथ्स हैं। आप लड़का या लड़की माँ की ग्रोथ को देख के या माँ के अंदर चेंजेस देख के नहीं पता कर सकते। वो केवल इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स होते हैं जो अल्ट्रासाउंड में आप पता कर सकते हैं कि अंदर क्या है क्या नहीं, जो कि इंडिया में नहीं बताया जाता है फॉर सम रीजंस, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोस इट, है ना। तो दैट इज व्हाई इट इज, और बाहर से आप नहीं बता सकते कि क्या है। मैम कुछ ऐड करना चाहेंगी आप? यही ऐड करना चाहूंगी मैं कि जो बॉय और गर्ल का मिथ्स है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये बिल्कुल डेफिनेटली, ये बिल्कुल टोटली मिथ्स है कि बॉडी के शेप को या एब्डोमेन आगे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, इसके आधार पर आप बोल दें कि लड़का है लड़की है, या पल्स को देख करके बहुत से डॉक्टर्स को एक्स वगैरह बोलते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। तो ये टोटली मिथ्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जेंडर आपके इस पर डिपेंड करता है कि वाई स्पर्म से या एक्स स्पर्म से, एक्स वाई स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है जेंडर। ये जेंडर सिर्फ मालूम पड़ता है कुछ टेस्टिंग के थ्रू और अल्ट्रासाउंड से, जो कि इंडिया में टोटली वेंड है। नोबडी से कि ये बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा बाय द सोनोग्राफिकली या कोई भी टेस्ट के तरीके से ये चीज की जानकारी नहीं होती है। आपके अंदर जो बच्चा पला वो बच्चा है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, आपका खुद का बेबी है, सभी बच्चे आपके खुद के होते हैं, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। ओके, वेरी वेल सेड मैम। और आजकल तो लड़कियां काफी अच्छा कर रही है, वी हैव अ लाइव एग्जांपल विद अस। लड़कियां मोर, यस, लड़कियां आजकल ज्यादा आगे हैं बॉयज के पीछे। यस, तो आपको प्राउड होना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों ही बहुत अच्छा। आपको बस उनको ग्रोथ देनी होती है, अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। We are doing another government campaign. Safe girl child. Yes, Absolutely. it is absolutely important, and they are also precious, right? So morning sickness only happens in morning. ये भी एक मिथ होता है कि कई बारी पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे उल्टी जैसा पूरे दिन लगता है या रात को भी लगता है, ये तो सुबह होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि अगेन आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिससे बॉडी कोप अप करने की कोशिश कर रही है। तो मॉर्निंग सिकनेस जरूरी नहीं केवल दिन में होगा, वो आपको सुबह भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है कुछ
कुछ खानों की स्मेल से हो जाए, हो सकता है कुछ चीजों की स्मेल से हो जाए, तो ये किसी भी वक्त हो सकता है। इसका केवल रीजन है क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजेस हैं जिसकी वजह से बॉडी अडेप्ट करना चाह रही है। आप इसके लिए बहुत अच्छे से अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा रखिए, उन खानों को अवॉइड करिए जो आपको इरिटेशन कॉज कर रहे हैं, उन सुगंधों को अवॉइड करिए जो आपको इरिटेट कर रहे हैं। सो जस्ट कीप योरसेल्फ प्लेजेंट एनवायरनमेंट, ऐसी चीजें लगाई घर में करिए जो आपको सूदिंग, जैसे लेवेंडर is something which is very very soothing. प्लीज धूप बत्ती मत जलाइए, प्लीज अगरबत्ती मत जलाइए, बिकॉज वो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी चीजें मत चलाइए, आर्टिफिशियल परफ्यूम्स मत यूज कीजिए, बट हाँ कुछ अच्छे नेचुरल फ्लावर्स आप आसपास रख सकते हैं जो कि आपको अच्छा सूदिंग इफेक्ट देगा। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? as usual you say कि मॉर्निंग सिक्स ड्यू टू हार्मोनल कॉज से होती है ना। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग है आपको जो डाइट में आप खाना ले रहे हैं उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आप ऐसा फूड नहीं खाएं, स्पाइसी फूड नहीं लें, लेट नाइट खाना नहीं खाएं, छोटे छोटे मील्स मल्टीपल टाइम्स में खाएं, एक साथ बहुत सारा नहीं खाएं। ये सब खाने से भी मॉर्निंग सिकनेस और एसिडिटी बढ़ती है, जिसके कारण दिन भर एपेंडिक्स बर्न, हार्ट बर्न होता रहता है। Thank you, ma'am. Okay, pregnancy is the reason for back pain. So ये एक बहुत बहुत बड़ा मिथ है। कोई भी आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का दर्द प्रेगनेंसी नहीं कॉज कर सकती। प्रेगनेंसी एक आशीर्वाद है, जो एक ब्लेसिंग है जो ईश्वर आपको देता है। तो कोई भी पेरेंट, कोई भी ईश्वर अगर आपका पेरेंट आप लेके चलते हैं तो कोई भी आपको ब्लेसिंग के साथ साथ दुख नहीं देता। तो ये डेफिनेटली इफ इट इज अ ब्लेसिंग, ये दुख के साथ या दर्द के साथ नहीं आ सकती। ये दुख या दर्द जो भी आपकी बॉडी में आ रहा है, ये सब या तो यहाँ से दिमाग से आता है या फिर आपकी बॉडी के टाइट होने की वजह से या मसल्स का ठीक से काम ना करना या फिर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी होना, इनकी वजह से आता है। दुख यहाँ से और दर्द आपकी बॉडी से। तो आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बैक पेन, मैं आपको बाकी चीजों के बारे में भी इसमें बता रही हूँ। तो जब आपको अगर स्ट्रेस है तो प्लीज आप मेडिटेट कीजिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर आपको बैक पेन, नी पेन, एंकल पेन, गर्दन में दर्द कहीं भी है, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कनेक्ट कीजिए या फिर अपने प्रेगनेंसी फिटनेस एजुकेटर को कनेक्ट कीजिए या फिर अपने डॉक्टर को कनेक्ट कीजिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको दवाई दे देंगे जिससे आप ठीक हो सके। अगर आप फिजियो या एंटीनेटल फिक्सेटर के पास, प्रेगनेंसी एजुकेटर के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जो परमानेंटली इसको क्योर कर सकती है और आपको बैक पेन नहीं हो सकता। होता क्या है, आपकी बॉडी में पॉस्चरल चेंजेस होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी का जो आर्च है, सो इफ इट इज यूजुअली आर्च जो होता है वो एक सी कर्व होता है, राइट? तो अगर वो जो कर्वेचर है वो आपका बढ़ जाता है, जो कि यूजुअली देखा जाता है प्रेगनेंसी में, पेट आगे निकल जाता है और जो पीछे वाली जो स्पाइन है वो ज्यादा गहरी हो जाती है, तो वो आपका इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेट की जो मसल्स है वो खुल रही है, आगे जा रही है, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो आगे जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सारी गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसको कम करने के लिए क्या होता है, जो मैंने आपसे बोला, मैं पिलाटेस कराती हूँ या मैं एक्सरसाइजेस कराती हूँ, उससे हम कोर की ट्रेनिंग करते हैं। जो मैंने पेट की एक्सरसाइज की सबसे पहले बात की थी, वो हम इसीलिए करते हैं ताकि अगर आपकी पेट की मसल्स अच्छी हैं, जो आपके आगे एब्स होती है, अगर वो कोर मसल्स आपकी अच्छी हैं जिसमें एब्स आती हैं, ऊपर वाला हिस्सा आता है, नीचे वाले हिप्स का हिस्सा आता है, नीचे पेल्विक फ्लोर का हिस्सा आता है, अगर ये सब आपका अच्छे से काम करेगा तो आपको कभी बैक पेन नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आपकी हाइट लंबी है तो हो सकता है कि आपकी जो पीछे बैक ऑफ दी थाई की मसल है वो टाइट हो जाती है। अगर वो टाइट हो जाती है तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। अगर आपकी जो साइड मसल है वो अगर टाइट होती है तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक क्विक एक्सरसाइज दे देती हूँ, इन केस आपको लगता है कभी कि आपको बैक पेन है। ये एक्सरसाइज जो मैं दे रही हूँ ये बहुत सेफ है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कुछ कॉम्प्लिकेशंस में हो, या हो सकता है कि आपकी गाइनी आपको अभी एक्सरसाइज सजेस्ट ना कर रही हो, तो प्लीज मुझसे पूछ के जाइए। बट ये एक्सरसाइज फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर में जो भी है कोई भी कर सकता है। So you can just sit down and straight like this, and जो मैंने आपको पहले दिखाई थी एक्सरसाइज जिसमें वो लेडी ऐसे थी, एक पैर फोल्ड था, एक पैर सीधा, and just bend on one side.
जब आप इस तरह बेंड करेंगे तो आपकी ये वाली जो मसल है वो खिंचती है, जितना ज्यादा वो खिंचेगी, लाइक you can just go down and stretch. So इस केस में what you can do is you can take a wall support और तब आप कर सकते हो ताकि आपको दिक्कत ज्यादा ना हो। इसके अलावा आप एक और कर सकती हैं जिसमें आप पैर सीधा कीजिए, सांस भरिए और आगे की तरफ जाइए। तो आप मैं इसमें आपका पेट दबाना नहीं है, आपने पेट को प्रेस नहीं करना, बेसिकली आपको नीचे जो पैर है उस हिस्से में स्ट्रेचिंग फील करनी है, दैट्स इट। तो आप बस उसमें स्ट्रेच फील कीजिए, बहुत बढ़िया स्ट्रेच आएगा। और अगर वो आ रहा है इसका मतलब वो टाइट है और इसका मतलब है कि वो रीजन है बैक पेन का। बट डेफिनेटली कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कनेक्ट कीजिए ताकि वो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन या आपका असेसमेंट या चेकअप कर सके कि आपको दर्द है क्यों, right? So these are the things which definitely helps, और that pain is only because आपका जो posture है वो खराब है, आपकी muscles जो है वो कमजोर है, stability नहीं है, that is the reason। और आपकी body में एक hormone है relaxin जो usually मैंने पहले भी कहा रिलीज होता है, जिसका काम होता है muscles को ढीला करना, ligaments को ढीला करना ताकि आपकी body expand कर सके। Alright? Now would you like to add something? हाँ, yes। मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि यू आर सो लकी, आज आपके साथ में जो मंदाकिनी जी हैं, शी इज इंटरनेशनली सर्टिफाइड एडिटर, एजुकेटर एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज आपके साथ में मंदाकिनी जी आपको बहुत अच्छे से बता रही है एक्सरसाइज के बारे में। ये आप जरूर से देखें कि ये बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है 9 मंथ्स की जर्नी में। ओके मंदाकिनी, जो आपने लास्ट एक्सरसाइज इट्स हाफ इंचेस ना? नहीं मैम, this is not, नहीं मैम, this is just forward bending, it's not, forward this is bending, hamstring stretch है ये। इसमें क्रंचेस तो हम प्रेगनेंसी में बिल्कुल अलाउ नहीं करते, और हाँ क्रंचेस आर एब्सोल्युटली नॉट अलाउड इन प्रेगनेंसी, बट हाँ मॉडिफाइड वे में हम चीजें करते हैं। और इसमें हम ये कर रहे हैं, इसमें हम केवल आगे झुक करके पीछे जो बैक ऑफ द थाई से लेग तक की जो मसल्स हैं पूरा स्ट्रेच करें, क्योंकि अगर हैमस्ट्रिंग्स टाइट होगी तो पक्का बैक पेन होगी, बिकॉज हैमस्ट्रिंग्स का अटैचमेंट इज ओवर दी पेल्विस और वो पेल्विस को टिल्टिंग कर जाने में कर देता है। तो वो पेट जो है वो बाहर जो निकलता हुआ लग रहा है वो एक्चुअली जो बोन है वो घूम गई है, तो उस बोन को वापस लाने के लिए एक और क्वेश्चन रहता है पेशेंट्स को, जैसे ही प्रेगनेंसी आती है, सेकंड मंथ हो, थर्ड मंथ हो प्रेगनेंसी का, इमीडिएटली उनके पास बैक पेन शुरू हो जाता है। व्हाट इज दिस? ये सेम वैसे तो उस समय अपने को एक्सरसाइज मैम जैसे मैंने बोला ये बहुत सेफ एक्सरसाइज थी, इससे कुछ भी नहीं होता, कंसिडरिंग ओनली इफ द पेशेंट इज अब लो प्लेसेंटा है या तो ऑफ कोर्स हम खड़े होने की स्टैंडिंग नहीं बताते। करेक्ट, तो अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, तो ऑफ कोर्स हम एक्सरसाइजेस नहीं देते। बट ये जो मैंने 2 बताई हैं ये कोई भी कर सकता है, इससे कुछ नहीं होगा नीदर टू द चाइल्ड। इसलिए मैंने कहा कि बच्चे का प्रेशर नहीं करना, पेट को दबाना नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते अननेसेसरी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े फॉर नो रीजन, बिकॉज विच विल अफेक्ट योर यूट्रस एज वेल। सो एब्डोमिनल प्रेशर नहीं बढ़ाना है, हल्का सा बस आगे झुकेंगी, अगर टाइट होगा तो उसमें ही खिंच जाएगा, और अगर वो खिंच रहा है इसका मतलब वो एक बेसिक रीजन है। उसके साथ साथ बहुत सारी अदर मसल्स भी होती हैं, जैसे साइड ऑफ द थाई है, कई बार वो टाइट होती है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर एडक्टर कंपार्टमेंट टाइट है। मैं एक और बता देती हूँ एडक्टर कंपार्टमेंट के लिए जो बहुत सारे लोग गलत करते हैं, which is like butterfly stretch। So जब भी हम किसी को बताते हैं butterfly stretch, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो यही लोग हैं, दिस इज द butterfly stretch को है। अब इसमें आप देखिए मेरा आर्च हुआ पड़ा है बैक पूरा, ठीक है, और मेरा जो पैर है वो इससे ज्यादा पीछे जाएगी ना, वो यहीं पे झूल रहा है। बट व्हाट आई से इज, अगर आपकी ये रेंज है आप उससे थोड़ा सा आगे स्ट्रेच कीजिए, जब आप स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे खींचेगा, तो बैलेंस स्टिक करने से अच्छा है आप सस्टेन स्ट्रेच कीजिए, सीधा पकड़ के रखिए और होल्ड कीजिए, काउंटेड फॉर से 30 सेकेंड्स एंड देन रिलीज, वो वापस नहीं आएगा। फिर आप उसको नीचे लेके जाइए जितना ले जा सकती हैं, होल्ड कीजिए, ओवर प्रेशर मत लगाइए एंड देन जस्ट लीव इट। अगर आपका ये कंपार्टमेंट ढीला है तो भी आपको बैक पेन नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं which leads to back pain, and हम जब भी कोई एक्सरसाइज बताते हैं या कुछ भी करते हैं, ऑफ कोर्स हम पहले असेस करते हैं, चीजें देखते हैं,
कैसा है क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली हम एक्सरसाइजेस देते। लाइक मैं इवन आई ट्रीट पेशेंट्स ऑनलाइन, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स, मेरे पास एक लेडी आई थी, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना ही बेड पे करवट ले सकती थी, एंड दैट टू शी केम अप टू मी इन लॉकडाउन पीरियड एंड शी डिलीवर्ड नॉर्मल। Imagine for a lady jo there was so much of pain. Yeah, she was in so much of pain that she couldn't even turn on the bed, she couldn't even sit, she couldn't even getting up from the bed was horribly painful for her. But हमने eventually say for example शायद 10 या 15 या 20 सेशंस लिए होंगे थ्रू आउट, एंड she came up to me in the end of second trimester. We managed, और उसमें यही सब कुछ था, ये सब टाइट था, एंड दिस वाज ऑल ऑनलाइन, दिस इज नॉट इवन मैंने उसको देखा हो या कुछ किया हो, जस्ट उससे कुछ मूवमेंट्स करा करके एंड वी डू इट। एंड ऑफ कोर्स उनके स्पाउस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था कि जो मैं बोलती थी वो उनसे वो करवाते थे, एंड डेफिनेटली शी कुड डिलीवर नॉर्मल, एंड शी डिलीवर्ड इन सिटिंग इन दैट malasana डीप स्क्वाट। तो उसके थ्रू उन्होंने बेबी को नीचे लाया एंड देन फाइनली शी डिलीवर्ड। So yes, it is possible that even if you have a back pain, you can get rid of it. और कई बार ऐसा होता है, ऐसी भी क्वेरीज थी कि पेशेंट का हस्बैंड केम टू मी एंड ही सेड कि हमें कुछ फील नहीं हो रहा है, इसको कोई दर्द फील नहीं हो रहा थ्रू आउट प्रेगनेंसी, इट इज द एंड ट्रिमेस्टर, शी हैड नो पेन एंड हस्बैंड वाज इन द क्वेश्चन मार्क कि प्रेगनेंसी में तो प्रॉब्लम आती है, इसको तो कुछ भी नहीं आ रही है। सो इट इज लाइक दैट कि ये प्रेगनेंसी में आपको कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक ब्लेसिंग है, इट कैन नॉट कम विद पेन, इट इज अ ब्लेसिंग। तो आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक कीजिए, सही बंदे से कनेक्ट कीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। मैम, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क अबाउट इट? Thank you. So stay climbing should be avoided in pregnancy. Again, I don't say कि stay climbing बंद कर देनी चाहिए, of course, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से पूछ के करना है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग है। तो ना ही एक्सरसाइज आप मेरे कहने पे स्टार्ट करेंगे, ना ही आप स्टे क्लाइंबिंग मेरे कहने पे स्टार्ट करेंगे, आपको अपनी डॉक्टर से पूछना है। अगर वो कहती है हाँ, तो डेफिनेटली आप करिए। मेरे हिसाब से अगर सब कुछ ठीक होता है तो डेफिनेटली मैं बेबी स्टेप्स करके आप जा सकती हैं। आप भागिए मत सीढ़ियों पे, पैर जमा के रखिए ताकि आप गिरे नहीं। सो जस्ट बी वेरी वेरी cautious, and it is absolutely safe to exercise or stay climb or be normal in pregnancy. It's not a disease. Just to interrupt me. Yes, please. एक्सरसाइज स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए मैं बताऊंगी आपको कि स्टेयर क्लाइंबिंग बहुत सेफ है। आप बेबी स्टेप पे बिल्कुल क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, एक दो फ्लोर तक सीढ़ी चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, कुछ केसेस होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हम लोग अवॉइड करते हैं। फर्स्ट है, यदि पेशेंट को थर्ड अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि रेस्ट करें, स्टेयर क्लाइंबिंग को अवॉइड करें। सेकेंड में प्लेसेंटा प्रीविया का केस है। प्लेसेंटा प्रीविया से मतलब होता है यदि उन पेशेंटों में जिनमें की आवल नीचे होती है, ठीक है ना, इन पेशेंट को थोड़ा हम लोग बोलते प्रिकॉशन के साथ चले। तो स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए भी हम मोस्टली अवॉइड करते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि इस 9 मंथ्स की जर्नी में किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन हो, या बिफोर टू 9 मंथ्स प्रीमेच्योर डिलीवरी या कोई अबॉर्शन में एंड अप हो इसका। इसलिए कुछ प्रिकॉशन के तौर पर कुछ केसेस में हम लोग स्टेयर क्लाइंबिंग अवॉइड करते हैं। बाकी समय तो इट्स एडवाइजेबल कि आप स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं। थैंक यू। कांट बेंड डाउन इन प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपको बोला, प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल फिनोमिनन, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज है जो आपकी बॉडी में हो रही है, इसमें कुछ भी मना नहीं होता है। एज अ फिजियो, एज अ ट्रेनर, मैं सारे मूवमेंट्स के लिए सजेस्ट करती हूँ, कोई भी ऐसा, बट हाँ, इट कम्स विद अ प्रिकॉशन। आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस, अगर आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो ऑफ कोर्स आप नहीं, अगर आपको बेड रेस्ट दिया गया ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते। अगर आप हाई रिस्क में आते हैं, अगर आपका बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, आपको थायराइड बहुत ज्यादा हाई है, थायराइड में आपको डॉक्टर से पूछना पड़ता है। लेकिन कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो आपके डॉक्टर आपको जब तक कंसेंट नहीं देते तब तक आपको फॉर्म में नहीं जाना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट इज बेंडिंग फॉरवर्ड, डेफिनेटली नॉर्मल है और आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सामान नीचे से उठाना है तो डेफिनेटली घुटने मोड़ करके आप हल्के से उठाइए, आगे झुक के डायरेक्टली मत आइए, क्योंकि हो सकता है, जैसे मैंने आपसे बोला, आपकी बैक थाई ऑफ द मसल टाइट हो, जो कि आपकी कमर से कनेक्टेड है। तो अगर आप एकदम से नीचे झुकती है और वो मसल टाइट होती है तो वो कैच में जाती है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है।
ओके ये एक है कि आपको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती आफ्टर अ सी सेक्शन. सो डेफिनेटली दिस इज अ कंप्लीट मिथ. अगर आप अपनी मसल्स को अच्छे से एक्सरसाइज करेंगी, अगर आप अपने आप को फिट रखेंगी, अगर आप, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका स्कार कैसा है. अगर आपका स्कार हेल्दी है और आपकी गायनी को लगता है कि हाँ ठीक है, दिस इज गुड, एंड अगर वो असेस करके देखती हैं, सो एज अ फिजियो और एज दिस, तो मैं प्रिपेयर करती हूँ यूजुअली, बिकॉज उसमें बहुत सारी मसल्स का इस्तेमाल है, और अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, यू कैन डिलीवर normal after cesarean. Ma'am, would you like to add something on it? Yes. मजारा, बट आफ्टर सीजरियन सेक्शन डिपेंड करता है कि आपके सीजर कितने हुए हैं. आपका एक सीजरियन सेक्शन हुआ है तो 50% चांसेस होते हैं कि सेकंड बेबी वजाना डिलीवर हो सकता है. सिर्फ उन केसेस में जिसमें कि बेबी का प्रेजेंटेशन नॉर्मल हो, आपका पेल्विस का साइज छोटा नहीं हो, आपका जो बर्थ कैनाल है, बर्थ पैसेज है, छोटा साइज नहीं होना चाहिए, बेबी बहुत ज्यादा साइज में बड़ा नहीं होना चाहिए. यदि बर्थ कैनाल छोटा होगा या बेबी साइज में बहुत बड़ा होगा तो सेकंड टाइम अगेन चांसेस सीजरिंग के रहते हैं. और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्कार कैसा है, आपका फर्स्ट डिलीवरी के बाद में ओवर वेट तो नहीं हो गए. यदि आपका वेट गेन ज्यादा कर लिया है आपने, तो उसमें भी चांसेस फिर आपके सीजरिंग के रहते हैं. नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए आपको एक्सरसाइज जरूरी होती है. सेकंड, फर्स्ट सीजरियन सेक्शन के बाद सेकंड नॉर्मल डिलीवरी इस पे डिपेंड करती है कि आपका बिशप कैसा है. बिशप से मतलब होता है आपका सर्विक्स कैसा है, आपका पेल्विस कैसा है, आपका बेबी डिसेंट हुआ है कि नहीं, आपका बेबी का हेड का एंगेजमेंट हुआ है कि नहीं. यदि ये सब चीजें हो गई हैं तो वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल इन फर्स्ट सीजरियन, आफ्टर फर्स्ट सीजरियन सेक्शन. या 2 या 3 सीजरियन सेक्शन हुए तो वेजाइनल डिलीवरी कभी नहीं होती. उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको सीजरियन सेक्शन ही करना होता है. तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करने के लिए आफ्टर फर्स्ट सीजरियन सेक्शन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. पेल्विक एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे बेबी नीचे डिसेंड करता है, तो वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस 50% 100 अच्छे रहते हैं. इट्स ओके. Thank you, ma'am. Okay, so I think that ends up my presentation. This is a voucher given by CordLife to all the members who are going to register with them. You can avail it and you can ask CordLife how to avail it. They will certainly guide you on this. Yes, so eat well and have a healthy lifestyle. When you know the reasons behind these myths, this is absolutely no reason to worry. There is no reason to worry, and this is a blessing, and enjoy it to the fullest. This time is not going to come back again. So pregnancy है, आप इसको अच्छे से enjoy कीजिए, and stay happy, stay healthy, and wish you a good and healthy delivery. Thank you. If you have any questions, आप लोग question box में हमें डाल सकते हैं, such that हम उसका answer आपको दे पाए. Yeah, it's a very, let me ask one question on the behalf of all the attendees. I think papaya, पपीते के लिए कोई क्वेश्चन आया आपके पास? Not really. बहुत लोगों का कहना ये होता है कि नाउ, चलिए मैं आपको बता देती हूँ पपाया के बारे में. पपाया प्रेगनेंसी में एडवाइजेबल रहता है. आप पपाया ले सकते हैं. इट्स बहुत अच्छा लग्जेटिव है. बहुत सारे पेशेंट सेडेंटरी लाइफ जीते रहते हैं या ज्यादा घर वाले उनको फैटी डाइट देते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है. तो पपाया से गुड लग्जेटिव कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है. लेकिन कच्चा पपाया कभी नहीं लेना चाहिए. राइट पपाया लेना चाहिए, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, पपाया में पपाया सीड्स को यूज नहीं करना चाहिए. पपाया सीड नहीं लेना चाहिए. अपर पार्ट जो सीड्स के साथ लगा हुआ बल्क है उसको रिमूव करके पपाया आप ले सकते हैं. और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप कभी कभी टेस्ट के लिए कुछ मात्रा में पपाया खा सकते हैं. कच्चा पपाया बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ राइपन पपाया लेना है. Okay, one more question. Can I do air travel in pregnancy? ओके, आप बिल्कुल, प्रेगनेंसी पीरियड आपका एंजॉयमेंट का पीरियड है. इसके लिए आपको एंजॉय करना ही है. आप जहां चाहें वहां घूमें. एयर ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं, बट एयर ट्रेवलिंग अप टू 28 वीक्स तक एडवाइजेबल रहती है. 28 वीक्स के बाद में लॉन्ग एयर जर्नी नहीं करना चाहिए. और एयर ट्रेवलिंग के लिए भी है कि शॉर्ट एयर जर्नी आप डोमेस्टिक फ्लाइट में इंडिया के अंदर 2 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट में 1 घंटे की फ्लाइट में आपको कहीं जाना चाहें
तो आप श्योर भी जा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जहां पर लॉन्ग जर्नी करना होती है आफ्टर 28 वीक्स के बाद, तो अपने गायकोलॉजिस्ट से, ऑब्स्टेट्रिशियन से सलाह लेने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आप जर्नी कर सकते हैं। जिसके मैं लॉन्ग जर्नी के लिए मैं एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि लॉन्ग जर्नी में पेशेंट्स बहुत लंबे टाइम तक रहता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे रहता है, जिसमें थ्रोम्बोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आपको जरूरी है जाना, तो अप टू 34 वीक्स तक आप एयर ट्रेवलिंग कर सकते हैं अपने ऑफिसर से परमिशन लेकर के, और उसमें भी आप हो सके तो वहां पे एयर की फ्लाइट के अंदर ही थोड़ा सा घूमे फिरे चले, और हाइजीन का ध्यान रखें, वाटर इनटेक करते रहें। इसके अलावा आपने कुछ लेग एक्सरसाइज बैठे बैठे वहीं पे फ्लाइट में कर सकते हैं, जिससे आपको थ्रोम्बोसिस वगैरह चांसेस ना रहे। आई थिंक इट इज ओवर टू। Okay, right. Yeah, Dr. Mandakini ma'am, one more question. Certain foods can help bring up labor? यस, Absolutely. फूड्स Okay, ma'am. नहीं, वैसे तो नॉट सो कंपल्सरी, बस कुछ फूड्स होते हैं जिनके कारण जीआईटी अपसेट्स होता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। फर्स्ट तो मैं कैस्ट्रॉल को मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, हर पेशेंट्स को 9 मंथ डेट के आसपास कैस्ट्रॉल देना शुरू कर देती हूँ। कैस्ट्रॉल इज ए गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टर, उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं, और कभी कभी बाउल इरिटेशन होते हैं जिसके कारण लूज मोशन होते हैं, और उससे से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट के स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है मेरी लाइफ में कि कैस्ट्रॉल से बहुत से पेशेंट्स मेरे लेबर में चले गए हैं और डिलीवर नॉर्मली डिलीवर भी हुए हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड है कच्चा पपाया, अनराइप पपाया जो होता है ना, उससे भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन समटाइम्स आ जाते हैं। बल्कि बुलाना चाहिए, पुराने जमाने में जो उसके पपाया के सीड्स होते थे, ब्लैक सीड्स, उसको एज ए अबॉर्टिफिशिएंट यूज करते थे, बिकॉज से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते थे, इसलिए तो बेबी अबॉर्ट हो जाता था जब ये सब एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी उस समय। और इसके अलावा पाइनएप्पल भी वो जीआईटी अपसेट करता है, तो जीआईटी अपसेट होने से भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो जाते हैं और पेशेंट गोइंग टू लेबर में चले जाते हैं। तो कुछ इस टाइप की फ्रूट से जो करते हैं। एक स्ट्रॉबेरी की लीव्स होती है, उसके जो लीव्स की टी बनती है, उसको भी आजकल बहुत से गांव में, पेरिफेरी में अभी भी वो स्ट्रॉबेरी की लीव्स को एज ए टी के रूप में यूज करते हैं। टी के साथ में टी में डाल करके पीते हैं, उस लीव्स की टी को बना करके, और उससे भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो जाते हैं और उससे पेशेंट लेबर में चले जाते हैं। Okay, ma'am, one more thing. Is it true heartburn means that the baby has lots of hair? नो, इट्स ए टोटली मिस। बेबी के हेयर से कोई हार्टबर्न नहीं होता है, और एवरी पेशेंट डजंट हैव ए कंप्लेंट ऑफ हार्टबर्न। हार्टबर्न जो होता है ना, ये टोटली हार्मोनल इम्बैलेंस है। प्रेगनेंसी टाइम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्टबर्न होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जैसे से बेबी ग्रो करता है, और हार्टबर्न का भी आप देखिएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 20% पेशेंट की कंप्लेन होती है हार्टबर्न की। इन सेकंड ट्राइमेस्टर में 40% पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ द हार्टबर्न। थर्ड ट्राइमेस्टर में 60% पेशेंट। हार्टबर्न के लिए एक तो प्रोजेस्टेरोन लेवल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से हार्टबर्न होता है फर्स्ट। सेकंड है, जैसे से बेबी ग्रो करता है, यूट्रस साइज अप होता है, तो स्टमक को पुश करता है साइड में। जब स्टमक पुश होगा तो उसमें गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बनेगा। जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है वो डेफिनेटली आपका एसिड सिक्रेशन आपका इसोफेगस में आएगा, इसोफेगस में आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन आएगा, तो हार्टबर्न पेशेंट को शुरू हो जाएगा। थर्ड है कि जो आपका इसोफेगल इंस्ट्रक्टर है, वो भी जैसे जैसे बेबी बढ़ता है, पुश होता है, वो पुश होगा तो उसमें इसोफेगस इंस्ट्रक्टर आपका पुश होगा उसमें, तो उसके कारण भी आपका एसिड अप आएगा। एसिड जब अप आएगा, इसोफेगस में आएगा, तो उसके कारण हार्टबर्न की प्रॉब्लम पेशेंट को शुरू हो जाती है आजकल। और थर्ड है, यदि पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ जीते हैं, तो स्ट्रेस की लाइफ से स्ट्रेस इंड्यूस भी हार्टबर्न बहुत होता है। फोर्थ, आपकी डाइटरी हैबिट्स। यदि आप एक साथ बहुत सारा खाना खा रहे हैं, आप स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको हार्टबर्न प्रोड्यूस करती हैं। इन सब कारणों से हार्टबर्न होता। हार्टबर्न बेबी के हेयर से नहीं होता है, ये टोटली मतलब आई मीन टू से कि दैट हार्टबर्न का मतलब ये नहीं है कि आपके बेबी के बहुत ज्यादा बाल, बहुत ज्यादा हेयर, हाँ, बाल नहीं है। Yes. Okay, so I think most of the queries which are already asked on the behalf of my attendees and all. Anything you want to update from your side, ma'am? So just go ahead. Now, last but not least, I can share some
important point which related to the stem cell banking, if you allow me. हाँ, yes. I think there's जैसा कि हमने okay. Yeah, Mandagini ma'am. I think जैसा कि there's मैंने आपको certain बताया है questions. कि आदित्य हॉस्पिटल आज ये जो वेबिनार कर रहा है कॉर्ड लाइफ के साथ में, कॉर्ड लाइफ एक स्टेम सेल्स बैंकिंग बैंक है. स्टेम सेल्स वो सेल्स होती है जिससे बेबी ग्रो करता है मदर के अंदर, यूट्रस के अंदर. तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं जिस सेल से बच्चा, इतना बड़ा बच्चा ग्रो करके पूरा ह्यूमन आता है, तो वो स्टेम सेल्स आपकी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल सेल्स हैं. ये स्टेम सेल्स जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उस समय हम कॉर्ड से कलेक्ट करते हैं. ये आपके पास सिर्फ 2 या 3 टाइम लाइफ में अचीवमेंट होता है जिससे आप स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं. या फर्स्ट डिलीवरी में, सेकंड, आजकल 2 साल में बच्चे लोग पैदा करते नहीं है, बहुत ही रेयर है कि 3 बच्चे कोई पैदा कर रहा है. तो ये 2 या 3 टाइम से आप स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं. ये स्टेम सेल्स जब बेबी की डिलीवरी होती है उस समय हम कॉर्ड को क्लैंप करते हैं बेबी के साइड से, और मदर के प्लेसेंटल साइड से हम स्टेम सेल्स को 100 to 150 ml मदर के प्लेसेंटल बेड को हम कलेक्ट कर लेते हैं, और उसमें से हम स्टेम सेल्स निकाल करके हम स्टेम सेल्स बैंक में उसको प्रिजर्व कर देते हैं. ये स्टेम सेल्स है ना, ये 3 जनरेशन तक कुछ डिसीज में आपको हेल्प करती हैं. आपकी जनरेशन जो पेरेंट्स हैं बेबी के, उनकी जनरेशन में, इसके अलावा जो आपके आने वाले बच्चे उनमें, और जो आपके पेरेंट्स हैं, इन तीनों में यदि कोई ऐसी डिसीज हो रही है जो ब्लड से रिलेटेड डिसीजेज है, जो आपके बॉडी के से रिलेटेड डिसीज है, कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जिनका ट्रीटमेंट आपके बाकी चीजों से नहीं हो पाता है, उनका ट्रीटमेंट स्टेम सेल्स होता है. मिस्टर सचिन हजेला आपको कुछ स्टेम सेल्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, जैसा आप देखिएगा. ओके, थैंक यू सो मच. ओके मैम, थैंक यू सो मच. आपने कॉर्ड लाइफ के बारे में, स्टेम सेल्स के बारे में एक्सप्लेन किया, पर मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. जैसा कि मैम ने आपको बताया कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये डिलीवरी के वक्त आती है, और इफ वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी एट द टाइम डिलीवरी वी कैन मिस फॉर एवर. तो ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में दोबारा नहीं आती है. जैसा कि डॉक्टर आशा मैम ने बताया कि स्टेम सेल्स ये वो मास्टर सेल्स होते हैं जिससे पूरे 9 मंथ के दौरान एंटायर बेबी के बॉडी के ऑर्गन्स, मसल, बोन्स, टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है. तो जिस मास्टर सेल से पूरे 9 मंथ के दौरान बेबी के बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, एग्जैक्टली हम वही मास्टर सेल्स एट ए टाइम डिलीवरी कॉर्ड एंड कॉर्ड ब्लड में से कलेक्ट करके -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में प्रिजर्व करने का काम करते हैं. इन स्टेम सेल्स को इसलिए प्रिजर्व किया जा रहा है क्योंकि ऐसी बहुत सी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हैं जिनका मेडिकली ट्रीटमेंट पहले संभव नहीं था, वह उन डिजीज का ट्रीटमेंट हम कॉर्ड एंड कॉर्ड ब्लड में से जो स्टेम सेल हार्वेस्ट किए जाते हैं उससे पॉसिबल है. पहले बहुत सारे सोर्स हुआ करते थे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को क्योर करने के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, आपका टूथ पल्स से स्टेम सेल निकाले जा सकते हैं, हमारे बोन मैरो से स्टेम सेल हार्वेस्ट किए जा सकते हैं. बट वहां पे जो स्टेम सेल्स के थ्रू ट्रीटमेंट की जो रिकवरी रेट जो हुआ करता था वो 100% नहीं हो पाता था. बट लेकिन जब से कॉर्ड एंड कॉर्ड ब्लड के स्टेम सेल प्रिजर्व किए जा रहे हैं, तो हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 जनरेशन तक बच्चा, बच्चे के बायोलॉजिकल सिबलिंग्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, इवन ग्रैंड पेरेंट्स तक हम उस बेबी के स्टेम सेल्स को डिफरेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में यूज कर सकते हैं. हम लोग ब्लड और कॉर्ड 2 अलग अलग चीज प्रिजर्व करते हैं. ब्लड में से ये सेल्स निकाले जाते हैं, वो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जिनकी बॉडी में आरबीसी डब्ल्यूसी की डेफिशिएंसी होती है, जिनको प्लेटलेट नहीं बनते हैं, जिनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए सेंटर ले जाना पड़ता है. जैसे कि आपने डिजीज का नाम सुना होगा, थैलीसीमिया मेजर, सिकल सेल एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, मल्टीपल मायलोमा, दे ऑल आर द कैटेगरी ऑफ द ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड ऑल. तो जहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट की डेफिशिएंसी होती है, वहां पे स्टेम सेल इज द ओनली वन ऑप्शन. और ये कहना कि हम बच्चे के स्टेम सेल प्रिजर्व कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो ये भी एक बड़ा मिथ है. जो बच्चा दुनिया में आ रहा है वो स्टेम सेल्स अपने पेरेंट्स के लिए लेके आ रहा है, क्योंकि डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बच्चे के पेरेंट्स को है, बच्चे को बाद में है. तो बच्चा जो दुनिया में आ रहा है वो अपने साथ एक ऐसा प्रीशियस गिफ्ट अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लेके आ रहा है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को क्योर करने में काम आता है. हम इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, कितने ईयर्स के लिए प्रिजर्व किया जाता है, हमारे क्या सर्विसेज होती है, हमारे क्या प्लान्स होते हैं, इन सारी चीजों के लिए हम लोग एक 45 मिनट्स का एक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हम आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, चाहे तो आप गूगल मीट या होम प्रेजेंटेशन या टेलीफोनिक जैसी कन्वीनियंट आपकी है, आप हमें प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंटेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि यस मैम, आजकल न्यू जॉइंट सर्जरी स्टेम सेल्स के थ्रू बहुत ज्यादा हो रही है.
और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। इवन कि इंदौर में भी कुछ हॉस्पिटल्स में, जैसे कि एप्पल हॉस्पिटल्स में और ये आनंद हॉस्पिटल में, सहज में, यहाँ पे न्यू जॉइंट सर्जरी स्टेम सेल्स के थ्रू की गई है और सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा आपको मैम कि जो बेसिकली जो आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जिनका 50 या 55, जिनका सिटिंग में बहुत ज्यादा रहता है, तो 50-55 ईयर्स के बाद एक इश्यू आता है, उनके जो जॉइंट के जो स्पिनल फ्लूइड्स होते हैं, जब वो सूखने लगता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो जॉइंट्स है, आपकी बोन्स है, रगड़ खा रही है और हमें आपका नी रिप्लेसमेंट और एंकर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज ए बोन टिश्यू डिसऑर्डर्स। तो जहाँ पे बोन्स के स्पिनल फ्लूइड जब सूखने लगता है तो बोन्स के टिश्यू को रीजनरेट करने में ये कॉर्ड टिश्यूज काम में आते हैं, जो हम अम्बिलिकल कॉर्ड में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। एडिपोज टिश्यूज की मदद से हम लोग स्पिनल फ्लूइड्स को रीजनरेट कर रहे हैं और वहां पे नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इट्स ए रीजनरेटिव मेडिसिन। तो इंदौर के अंदर आपका आनंद हॉस्पिटल हो गया, सहज हो गया, एप्पल हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज की हेल्प से ये जॉइंट्स के आर्थराइटिस, रीमो आर्थराइटिस के केसेस में स्टेम सेल्स का यूज हो रहा है मैम। Wow, that's something very nice and बहुत बढ़िया. It's so much good for patients. Very nice. एक पेशेंट को मैं आप ये मैसेज देना चाहूंगी कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 का, ठीक है ना, तो कोविड-19 वैक्सीन इज सेफ इन प्रेगनेंसी, इन ऑल ट्राइमेस्टर इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी, इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट। सो प्लीज आप सब लोग कोविड वैक्सीन को जरूर लगवाएं। इसके बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, अभी तक कोई भी साइंटिफिक डाटा नहीं आया है कि बच्चे पे या मदर पे कोविड-19 वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है। फर्स्ट थिंग, सिर्फ वो पेशेंट्स जिनको कोई कार्डियक डिसीज है या जिनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, लंग्स डिसीज है, अस्थमा है, सीओपीडी है, या जिनको किसी वैक्सीन से एलर्जी है, उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही वैक्सीन लगवाना है, अदरवाइज नहीं लगवाना है। बाकी सभी पेशेंट्स जिनके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन ड्यूरिंग 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में लगवाना है। ये बहुत जरूरी है। ये मदर को जब सेफ करेगी, मदर हेल्दी रहेगी तो बेबी ऑटोमेटिक हेल्दी रहेगा। Okay, so Dr. Mandakini, I think there are some questions basically from right now. Yes. Yeah. Any question, Mandakini? Ma'am, there's a question by your patient Harshita. She said, "Can I take green tea?" Okay, green tea is very nice. आप हर्षिता बिल्कुल ग्रीन टी ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं बेबी की ग्रोथ के लिए एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगी कि आप दिन में 5-6 बार ग्रीन टी ले सकते हैं, बट नॉट टू मच कि आप 8-10 बार ग्रीन टी लें, हर एवरी आवर में ग्रीन टी लें, ऐसा नहीं। हर चीज को लिमिट में लेना बहुत जरूरी है। वो आपकी बॉडी के लिए उतनी तभी हेल्पफुल रहेगी, हेल्दी रहेगा जब आप उसको उसकी जरूरत के हिसाब से लेंगे तो। I think next question is for me. If doctor prescribe full bed rest, then how we can cope up with that as full body pain arises due to bed rest? Asked by Kavita. So कविता जी, डेफिनेटली ये होती है दिक्कत, क्योंकि जब आप बहुत देर तक बेड पे लेट जाती हैं तो आपकी जो स्पाइनल मसल्स हैं उनमें दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो फुल बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बेड पे बैठ नहीं सकती, आप चल नहीं सकती या आप भाग नहीं सकती, सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, लेकिन आप उठ बैठ पोजीशंस चेंज कर सकती हैं। तो अगर आप फुल बेड रेस्ट पे हैं तो किसी भी एक पोजीशन में अगर आप ज्यादा देर तक रहेंगी तो आपको डेफिनेटली उस एरिया में पेन शुरू हो जाएगा, बिकॉज द कंप्रेसिव फोर्सेस जो उस पे जा रहे हैं। तो आप पोजीशंस बदलती रहिए, आपको पेन नहीं होगी। जैसे मैंने कहा, ये जाना बड़ा जरूरी होता है कि बेड रेस्ट क्यों दिया गया है। तो एक बहुत सेफ कुछ जनरल एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप कर सकती हैं ताकि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा रहे, ताकि आपकी मसल्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ रहे। तो वो आपको किसी भी complete bed rest cases में भी आप कर सकती हैं। तो you can connect with your doctor who can just help you out. ये जो पेशेंट कविता है, इसके 5 abortion 4-5 abortion हुए हैं। She is asking to question to you. She is my patient. She got in 4 to 5 abortion and 13 abortion in 16 weeks. 3 to 4 times she is admitted up to 16 weeks. She is a very precious patient. So definitely, this is a high risk
Yes. ये मतलब ये पेशेंट थोड़ा वॉक भी करती है, बाथरूम भी जाती है, तो उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है. My God, my God. अभी So, शी इज नाउ up to around say 19-20 weeks. okay, okay. So, So I under my think, ma'am, treatment, if you can just suggest, so basically, I think movement of the hand should not cause her Yes. any issue. तो वो Yeah. लेटे लेटे हाथों को ऐसे ऊपर नीचे कर सकती हैं, पैरों को एड़ी पंजे चला सकती हैं, Yes. अपने हिप्स को टाइट और ढीला कर सकती हैं. बस आप इतना कीजिए, इससे आपको थोड़े चेंजेस आएंगे. बाकी आप मैम से पूछ के अगर वो बोलती हैं साइड टर्निंग कर सकते हैं कि नहीं, या बैठ अभी सकते हैं. उसको मैंने सिटिंग I एडवाइस don't कर think दिया so. है. हाँ, तो अभी उसको वो मैंने लास्ट इसमें आफ्टर 16-17 बाद में सिटिंग मीटिंग सब एडवाइस किया हुआ है, लेकिन उसके पहले बहुत ही प्रेशियस रहा है इसका. नहीं, hats off to you, एडमिट ma'am. होती रही है. Hats off to you for handling Yes. such a precious case, and all the best to you, Kavita. Looking forward for a healthy pregnancy to you. Hopefully, yes, you will deliver good. You are in safe hands and good hands. I Okay. think next question is, can we eat papaya in 8th and 9th month of pregnancy? ये तो आपने Yes, बताया. you can eat it. हाँ, मैंने बताया अभी आपको कि you can You eat it have to papaya. try- Papaya is, Ma'am, हाँ, राइपन Please, पपाया आप बिल्कुल ले सकते हैं, बस अनराइप पपाया नहीं लेना है 9 मंथ्स तक, है ना. एंड 9 मंथ्स में जब बिफोर ड्यू डेट आप अनराइप पपाया भी ले सकते हैं, और पपाया बिल्कुल ड्यू डेट के पहले तो मैं पेशेंट को एडवाइस करती ही हूँ, क्योंकि वो आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प uterine contractions cause करते हैं. So there's one question, मैम, एक्सरसाइज किस मंथ से स्टार्ट करनी चाहिए? आज बाय पूजा. So I think पूजा, ये जैसा मैंने बोला, आपको अपनी डॉक्टर से पूछ के ही करना है. So मैम से पूछ के आपको एक्सरसाइजेस लेनी है. अगर आप सेफ हैं तो एक्सरसाइज एज अर्ली एज फर्स्ट ट्रिमेस्टर एंड एज लेट एज कंप्लीट जस्ट द डे ऑफ बिफोर डिलीवरी, वहां तक आप कर सकती हैं. इवन ड्यूरिंग द लेबर वी डू एक्सरसाइजेस. तो इंड्यूस करने के लिए भी एक्सरसाइजेस होती हैं. तो आप एक्सरसाइजेस का देयर इज नो स्टॉप राइट फ्रॉम कंसेप्शन टिल द एंड, बट ओनली आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट, देन ओनली वी सजेस्ट यू टू गो फॉर एक्सरसाइजेस. मैम, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. बताऊंगी मैं. हाँ जी, बोलिए. आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए मैम, फिर हम लास्ट एक्सरसाइज के लिए मैं बताऊंगी कि मैं एक्सरसाइज को ऑलवेज प्रेफर करती हूँ सिर्फ कुछ ही इंडिकेशंस में, जैसे मैंने आप बताया कि बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है पेशेंट की, बार बार थर्ड टेंटेशन में जाती है पेशेंट प्रेग्नेंट प्रेगनेंसी में, या फिर उसको प्लेसेंटा प्रीविया है. इन केसेस में मैं बहुत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं एडवाइस करती हूँ. जैसा कि मंदाकिनी ने बताया कि बेड पे लेटे लेटे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो करिएगा. बाकी सभी पेशेंट्स में जो गुड एंड हेल्दी है, जिसमें कोई इस टाइप की कमी, उन सबके लिए मैं एक्सरसाइज प्रेफर करती हूँ. ऑलवेज मैं लव टू एक्सरसाइज. I know, it's such good to regulate your hormones and everything. Last question, I think we don't have much time now. Mrs. Surbi is asking, क्या हम प्रेगनेंसी के दौरान पेट्स और स्पेशली कैट्स के कांटेक्ट में रह सकते हैं? नो, कैट्स इज वेरी डेंजरस. कैट्स के कांटेक्ट में कभी नहीं रहना है. कैट्स के साथ में कुछ इन्फेक्शंस, एक ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन होता है, वो कैट्स की वजह से हो. टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन, नॉट ट्राइकोमोनल, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन कैट्स की वजह से होता है. टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन इज रिस्पॉन्सिव फॉर द अबॉर्शन. इट इज ऑल्सो बेबी में कोई भी डिफेक्ट या प्रीमेच्योर डिलीवरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो कैट्स के कांटेक्ट में मैं पेशेंट को अवॉइड करती हूँ. पेट्स इज गुड. पेट से बस आपके पास पेट्स, आपका खुद का पेट है, दूसरे पेट्स हैं जो घर में हाइजीनिक हैं, आप जिनको बराबर घर में इसका हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, हेल्दी हैं, उनके कांटेक्ट में आप रह सकते हैं. बाकी कैट्स के नहीं, क्योंकि कैट से टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है. Okay, ma'am. Thank you so One much, more ma'am. question from last question basically is very important question from Rashmi Sharma, and I am 4 months pregnant and in my breast something is liquid is leaking. This is a question. I missed this question. Sachin, I am not able to hear. What question? Ma'am, question Repeat is I am 4 months. I have 4 months pregnant and in my Yes. breast something is liquid is leaking. Some liquid is leaking. She has a problem. It is normal. It's absolutely normal. It's due to hormonal problem. जैसे जैसे बेबी आपकी बॉडी में ग्रो करता है, तो बच्चे के हार्मोनल के कारण आपकी जो बॉडी में हार्मोनल चेंज प्रेगनेंसी के कारण आता है,
उसके कारण सिक्रीशंस आते हैं ब्रेस्ट से, ये नॉर्मल होते हैं, उसके लिए कोई वरी होने की जरूरत नहीं है. Ma'am, multiple first sonography and it's harmful to do multiple sonography during pregnancy. This is a question from Astha Gupta. No, it's totally miss. And sonography is not harmful to pregnant baby. It's absolutely safe for baby and you also. Okay, ma'am. So thank you so much. Okay, I think most of the query you already resolved during the session. Thank you so much, Dr. Mandakini ma'am also. And thank you so much, Dr. Asha ma'am, for giving me a valuable time. And as a Cord Life, हम चाहेंगे कि इस टाइप के रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोग इस टाइप के डिफरेंट सेशन आपके साथ आपके अंडर में हम लोग कंटिन्यू कंडक्ट करें और आपके पेशेंट्स को मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ द प्रेगनेंसी. तो थैंक्स फॉर डॉक्टर आशा मैम, थैंक्स डॉक्टर मंदाकिनी मैम फॉर गिविंग मी वैल्यूएबल टाइम. ये जो पूरा सेशन है ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन है और ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन जो पेशेंट है उनके पूरा रिकॉर्डेड सेशन हम आपको आपकी ईमेल आईडी पे आपके व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे. और इसके अलावा जो पेशेंट आपके जो किसी कारण से अगर ज्वाइन नहीं भी कर पाए हैं उनको भी ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन हमारी तरफ से उनको ईमेल आईडी पे उनकी व्हाट्सएप नंबर पे भेजा जाएगा. जो गिफ्ट है वो उनको ईमेल आईडी के ऊपर गिफ्ट कूपन्स उनकी ईमेल आईडी पे कॉर्ड लाइफ की तरफ से शेयर कर दिए जाएंगे. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. हैव ए नाइस डे डॉक्टर आशा मैम. हैव ए नाइस डे डॉक्टर मंदाकिनी मैम. Okay, Thank you so much for having me, and it was nice meeting you, ma'am. Thank you. Okay, nice. Bye bye. Bye ma'am. Thank you. सभी के लिए थैंक्स है फॉर लिसनिंग. Okay, thank you ma'am. Okay, thank you. Bye. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice.